कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं बट दे कीप ऑन फेलिंग ऑल द टाइम, और उनके उस पे भी क्या प्रॉब्लम आती है, वो एक लूप में ट्रैप हो जाते हैं। और वो इसलिए नहीं उस लूप में ट्रैप होते कि वो फेल हो गए हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एक फेलियर बेस्ड आइडेंटिटी बन जाती है। Most of us don't know about what is in our desire and why it is, and why does it play so important role, and why does we need to recognize it in our life. See, inner desire, it is a silent fire that lights your path and it helps you to become what you truly are. And it also meant to illuminate your way. You can say it is a blueprint of your becoming. हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माइंडसेट बना दिया जाता है, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट और अ विमेन, कि फॉर एग्जांपल आप विमेन हो तो फिर आपको चूल्हा चौका ही करना है। आप अगर स्टूडेंट हो तो फिर अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने साइंस नहीं लिया, तो फिर यू आर ऑफ नो वर्थ, राइट? तो हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म दैट माइंडसेट टू अ पॉजिटिव? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello and welcome once again at TVT. You all liked our previous videos and I hope you will like this one as much as you liked our previous one, because today we are going to talk about how you can transform your mindset from a negative one to a positive one. So today we are joined by Kiran Paramji, who is a life and mindset coach. So let's dive in. Hello ma'am, we welcome you on our TVT platform and thank you so much for giving your spacious time to us. Thank you, Kanika, for a warm welcome. And I'm truly looking forward for this discussion. And I hope our audience will take something meaningful today. Hi, I'm Kiran Bhatti, a life and mindset coach and founder of Life Decorator Kiran Param. What if you know that you are living a life, not the one you chose, but the one you are settled for? Your mindset is your remote control. Change the channel and you change your life. I help the young minds and women for smashing their self-doubt, to gain clarity in their relationship and career, and to take new challenges as a stepping stone for success. At Life Decorator, we design the life you love and you want to live. So live by design and not by default. So ma'am, first of all, we all want to know कि आपको क्या लगा कि how did you felt like कि you need to become a life and mindset coach? See, I have been in a teaching line and I have seen students struggling for their career when they come out of their colleges. उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या career opt करें, whether they should listen to the inner desire or they should take the traditional job. और कई बार उनके ऊपर pressurize भी होता है. So I just want to help the students, the young minds, and I am also part of a women organization, and I have seen women, they are struggling with the relationship and they are finding their own worth. So I have opted for this beautiful profession as a life mindset coach. Exactly. And ma'am, as you were talking about women organization, you have started been working into Yeah. women organization, right? And we have seen your Insta handle too. So usme we have seen there is a page called Life Decorator, Yeah. right? So what's the vision and mission behind it? See, our mission is to be design the life that you want to live. हम वो लाइफ डिजाइन करते हैं जो आपके इनर डिजायर की वजह से है, और when you are aligned with your life that you want to live, then you feel truly alive. Exactly. And ma'am, during your answer, your first answer, you said a word inner desire. Yeah. But most of us don't know about what is inner desire and why it is
and why does it play so important role, and why does we need to recognize it in our life? See, inner desire, it is a silent fire that lights your path, and it helps you to become what you truly are. And it also meant to illuminate your way. You can say it is a blueprint of your becoming. And you can say it's like a compass. ये हमारे ट्रू पैशन, ट्रू पर्पस की तरफ पॉइंट आउट करता है कि हमारा ट्रू पैशन क्या है, ट्रू पर्पस क्या है. एंड दिस ट्रू पैशन एंड ट्रू पर्पस कुड बी एनीथिंग, like traveling, to do stand up comedy, or to or singing, dancing, any other work which will help you to simply live a peaceful and satisfied life. And ये जो हमारा रियल ये इनर डिजायर होता है ना, इट्स रियल, इट्स रॉ एंड इट्स वेरी पर्सनल. इसमें किसी और की मर्जी नहीं होती. यू आर नॉट गाइडेड बाय अदर्स. एंड अगर हम अपने इनर डिजायर की नहीं सुनते एंड वी इग्नोर इट, देन वी आर लिविंग द लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर पीपल. हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं. And when our goals, our relationship, our career, it is aligned with our inner desire, then you feel purpose driven, then you feel energetic, and you feel deeply alive. And in my work as a life coach also, I have seen that people, they there's a powerful shift in their style of living, because then they reconnect with the inner desire. They are not only surviving, they are truly living. आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, देखी है आपने? उसमें आप आमिर खान, तीन करेक्टर थे हमारे, तीन हीरो थे. उसमें से कौन से हीरो के ऊपर आपको लगता है कि इनर डिजायर थीम लेके बनाई गई है? आमिर खान. नो आइडिया. माधवन. माधवन ही ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग. लेकिन हम क्या उसको, वो क्या इंजीनियर बनना चाहता था? वो क्या बनना चाहता था? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था. ही वांटेड टू बिकम अ फोटोग्राफर. लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे, उसके पेरेंट्स की विश थी वो इंजीनियर बने. तो जब उसको इंजीनियर बन के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं एक बार अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके देखता हूँ कि मैं शायद वो मान जाए और मैं अपनी ड्रीम जी सकूं. अपने फादर से बोलता है कि पापा, अगर मैं इंजीनियर बन भी गया, मैं बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. मैं बनना ही नहीं चाहता. तो उसके फादर पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं और उसको ये भी बोलते हैं, अगर तुम ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, और अगर तुम जब दूसरे लड़कों को देखोगे वो लंबी लंबी गाड़ियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, देन हाउ यू विल फील? तो वो कहता है, इट डजेंट मैटर टू मी. इट डजेंट मैटर टू मी. मैं कम कमाऊंगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी की बजाय छोटी गाड़ी होगी, बट आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल कीप यू बोथ हैप्पी, मम्मा एंड डैडी. तो उसके फादर कन्विंस हो जाते हैं, और फिर माधवन, फिर वो अपनी इनर डिजायर के हिसाब से अपनी जॉब जॉब लेता है. और ये हमें एक और चीज बताता है, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे डियर वन होते हैं, दोज हु केयर फॉर अस, दोज हु आर आवर वेल विशर्स, वो ये नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा सक्सेसफुल रहे लाइफ में. व्हाट दे वांट अस टू बी हैप्पी. हैप्पी कौन रहता है अपनी लाइफ में? जो अपने ही सक्सेस को अपने हिसाब से जीता है. सो फॉर मी, इनर डिजायर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. Exactly. Now, ma'am, if we talk about mindset, so हमारी सोसाइटी में एक ऐसा माइंडसेट बना दिया जाता है, आइदर इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट और अ विमेन, कि फॉर एग्जांपल आप विमेन हो तो फिर आपको चूल्हा चौका ही करना है. आप अगर स्टूडेंट हो तो फिर अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने साइंस नहीं लिया, तो फिर यू आर ऑफ नो वर्थ, राइट? तो हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म दैट माइंडसेट टू अ पॉजिटिव वन? ओके, सी, माइंडसेट क्या है? हमारी सोच है. हुँ? और ये एक लेंस की तरह होता है जो हमारी रियलिटी हमें दिखाता है. और माइंडसेट इट इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन. ये हमारे देखने के नज़रिए को बदलता है. इफ अ पर्सन इज ऑफ अ ग्रोथ माइंडसेट, वो एक फेलियर को कैसे लेगा? हम्म. एज अ फीडबैक. और जो फिक्स माइंडसेट वाला इंसान है, वो फेलियर को कैसे लेगा? ही विल टेक इट एज अ
proof of inadequacy कि नहीं, I'm not worth of doing anything. So our mindset, it does not change the event. Event वही रहेगा. अगर आप किसी चीज में नहीं कुछ कर पाए हो तो फेल हो गए हो तो इवेंट वही रहेगा, but it will change the meaning and the drives action. And mindset also influences your decision. If you think that you are not good enough, then what you are doing? सारी जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो. On the other hand, if you think that yes, I can learn, then you are leaning towards the challenges. You want to face new challenges. So our mindset is just like a GPS, our internal GPS. It helps us in, it will decide. Our mindset will decide whether it will take you to a scenic route, or it will take a shortcut, or it will stay park at one place. और ये जो हमारा mindset होता है ना, ये एक पैटर्न क्रिएट करता है जो हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं. सपोज आपको चाइल्डहुड से कोई कह रहा है, कनिका, यू हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. आपको अपने वो दिमाग में आ गया और वो आपके रिपीटेड थॉट बन गया. यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी, आई एम केपेबल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स विच आर हार्डर. तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ गई. और ये जो आपके रिपीटेड माइंड है, ये आपके बिलीफ बन जाते हैं. और जो बिलीफ है वो आपके बिहेवियर में आता है, और बिहेवियर है वो क्या बनती है, आपकी हैबिट. सो ओवर अ टाइम ये सारी चीजें क्या बन जाती हैं, हमारी आइडेंटिटी. और जो हमारी आइडेंटिटी होती है, इट बिल्ड्स आवर लाइफ. अगर हमारी आइडेंटिटी नेगेटिव है तो हमारी लाइफ नेगेटिव बनेगी. अब आपको कोई पॉजिटिव ऐसी बातें बोलने की बजाय क्या, यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ नहीं, then फिर आप अपनी कैसी बिलीफ बनाओगे. Exactly. एंड इफ योर माइंडसेट इज पॉजिटिव, देन योर लाइफ विल बी ऑन द राइट ट्रैक. एंड इट ऑल्सो ब्लॉक्स एंड अनब्लॉक्स आवर पॉसिबिलिटीज. क्योंकि जब कोई इंसान अपनी आपको कहता है, या कुछ आप कोई भी इंसान उनसे कहता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो आपको एक सोल्यूशन सिर्फ देगा. वो कहे इट्स ऑल देयर, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता. जो लिमिटिंग बिलीफ का इंसान होगा. और जो एम्पावरिंग बिलीफ का इंसान होगा, एम्पावरिंग ग्रोथ माइंड का इंसान होगा, वो क्या कहेगा, व्हाट एल्स इज देयर, और क्या क्या चीजें जो मैं सीख सकता हूँ, व्हाट ऑल अदर टेक्निक्स, व्हाट other strategies and problem solving techniques are there to go ahead. And so our mindset, it is a foundation of a change. ये जितनी हमारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बिलीफ्स हैं, दे ओनली वर्क व्हेन दे आर अलाइंड विद आवर माइंडसेट. और हमारे ये टूल्स, टेक्निक्स, बिलीफ्स, ये क्या है, एक सीड की तरह है. और हमारा माइंडसेट क्या है, एक सॉइल है. एक सीड एक अच्छे प्लांट में कैसे ग्रो करता है, जब हमारा सॉइल फर्टाइल होता है. सो दैट्स इट. एग्जैक्टली मैम, ये आंसर तो आपका काफ़ी अच्छा था एंड आई गेस कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे. नाउ मैम, माय अदर क्वेश्चन टू यू इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन समवन टॉक्स अबाउट अ करियर और अबाउट अ फ्यूचर, तो वी गो ब्लैंक. हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले, हमें क्या करना है, हमें क्या अच्छा लगता है. तो हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म दैट माइंड इनटू द वन जिसको पता है कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट. हाँ, देखो, जब किसी को ना अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता होता है, तो उसको उससे इस आंसर के जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. उसको खुद इस आंसर को ढूंढने दो. इसके भी एक पूरा प्रोसीजर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी चीज ये है कि गोल को सेट करने की बजाय सेल्फ अवेयरनेस करो. Just look inside yourself. What are the things which brings happiness to you? जिस काम को करने में आपको मजा आता है, आप एक जॉय लिस्ट बनाओ और अपने अराउंड देखो. व्हाट टाइप ऑफ पीपल और व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मेक्स यू फील अलाइव, उनकी तरफ ध्यान दो. देन यू जस्ट लुक अराउंड एंड सी what type of things and try some things or try some action and see कि कौन सी ऐसी चीजें जो आपको एग्जॉस्ट करते हैं, जहां आप अपनी एनर्जी लूज करते हो.
और उसके बाद आप एक अपना ना एनर्जी जनरल क्रिएट करो। उस एनर्जी जनरल में देखो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं, जिस काम को आपको करने में मज़ा आता है। और ये काम एटलीस्ट यू हैव टू डू फॉर 15 और अ मंथ, बिकॉज़ जब हमारा एक पैटर्न बनता है ना, हमें क्लैरिटी वहाँ से आती है। सो जस्ट ट्राई एंड डोंट थिंक, अपना काम शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मेरे को जब क्लैरिटी आएगी मैं तब काम करूंगा, क्योंकि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं पहले हमें क्लैरिटी तो हो जाए, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, फिर हम काम करना शुरू करेंगे। बट क्लैरिटी इट डज नॉट कम लाइक दिस, इट कम्स विद एक्शन। और यू टेक अ नेक्स्ट स्टेप, एक दूसरा स्टेप लो। और इंस्टेड ऑफ प्लानिंग फॉर 10 years कि मैं इसके बाद ये जॉब करूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, नो। पहले एक छोटा स्टेप लो। और जब आप एक छोटे स्टेप से स्टार्ट करते हो, यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि इसको मैंने कंप्लीट किया, मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा। सो आवर लाइफ पर्पस इज जस्ट लाइक अ स्टेयरकेस, वन स्टेप एट अ वन टाइम। एंड हमें डिफरेंट चीज़ें क्यों ट्राई करनी चाहिए, एंड वी शुड एक्सपेरिमेंट विद न्यू हॉबीज, न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू शॉर्ट कोर्सेज। क्योंकि हमें अपनी फेवरेट डिश के बारे में पता ही नहीं चलेगा अगर हम 3-4 डिशेस को इकट्ठे ना ट्राई करें। अगर हम एक ही डिश खाते रहेंगे तो हमें दूसरों का स्वाद पता चलेगा नहीं। सो हमारा जो क्लैरिटी है, इट कम्स विद नोटिसिंग, इट कम्स विद रिफाइनिंग, नॉट जस्ट बाय सिटिंग एंड ओवर थिंकिंग। तो क्लैरिटी तो आपकी आपके काम करने से आती है, ऐसे नहीं आती। और आपको ज़रूरी नहीं फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में पता हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग, नहीं, या फिर आप चलना शुरू करो, नो। फर्स्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड यू विल रीच योर फाइनल डेस्टिनेशन, नो मैटर यू विल बी स्टक समवेयर, लेकिन आपको धीरे धीरे रास्ता अपने आप मिलेगा। Exactly. Now, as we have a bit of chit chat before shooting the podcast, so at that point you told us and that time कि you were a teacher before, Yeah. right? Yeah. So आपने ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स बच्चों के एनकाउंटर करे जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा बच्चे फेस भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, एंड हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म दैट माइंड? लाइक सबसे ज़्यादा तो एक फ़ियर ऑफ फेलियर होता है उनके अंदर, कि हम जो स्टूडेंट्स जो, क्योंकि देखो सब स्टूडेंट्स एक से नहीं होते हैं, सब अलग-अलग स्टूडेंट्स होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ करना तो चाहते हैं बट दे कीप ऑन फेलिंग ऑल द टाइम। और उनके उसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है, वो एक लूप में ट्रैप हो जाते हैं। और वो इसलिए नहीं उस लूप में ट्रैप होते कि वो फेल हो गए हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी एक फेलियर बेस्ड आइडेंटिटी बन जाती है। और उसके लिए व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फर्स्ट प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, ट्रीट योरसेल्फ विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली जब आपको कोई सेटबैक मिल रहा है। और उसके बाद आप अपने आप को डाउट करना बंद करो, और उन एविडेंस को स्पॉट लाइट करो जिसमें आपने कभी सक्सेस ली हो या अचीवमेंट्स लिए हो। और उन अचीवमेंट्स को आप सोचते हो जब, तो उससे क्या होता है, आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है, राइट। एंड इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस डेली अफर्मेशंस कि आई एम केपेबल, आई एम बिकमिंग अनस्टॉपेबल, आई एम ग्रोइंग। इस तरीके के जब हम एफर्मेशन करते हैं, वी गेट अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स इनसाइड, और हमें स्ट्रेंथ मिलती है टू ओवरकम अ फेलियर। और सेकंड, अपनी फेलियर को एज अ फीडबैक लो। जितना हमारा फीडबैक कैसे लेंगे, जब हम किसी चीज़ को नहीं ठीक से कर पाते हैं तो हमें अपने वीक पॉइंट्स का तभी पता चलता है। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव योर weaker part. And like Ariana Huffington, she rightly said that failure, it is not opposite of success, it's a part of a success. उसी से हम सीखते हैं और हम सक्सेसफुल होते हैं। अब आप देखो कितने फेमस पर्सनालिटीज हैं, जैसे वॉल्ट डिज्नी हो गया। वॉल्ट डिज्नी की जो फर्स्ट एनिमेशन थी, इट वाज रिजेक्टेड बाय द एडिटर। वो कहते हैं आपके पास तो कुछ आइडियाज ही नहीं है, इमेजिनेशन आप
का पुअर है और आपने माउस को एक करेक्टर ले लिया, इसको देख के लेडीज डर जाएंगी। तो अगर उस समय वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन बनाने बंद कर दिए होते, अपने आप को सेल्फ डाउट करते या उनको डर होता कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या आज वो फेमस होते? आज आप देखो हर जगह हर बच्चे की बुक्स, कॉपीज, बेडशीट, कर्टन्स, टेबल, चेयर, इवन पेन, पेंसिल, हर जगह आपको वॉल्ट डिज्नी के करेक्टर्स दिख जाए। Then you see the best player, basketball player, Michael Jordan. He was cut out of basketball team when he was in high school. और अगर उस समय उसने सोचा होता नो आई एम नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल प्लेयर, तो वो क्या बन पाते? सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। और जो हमारा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्टे अवे फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच कीप ऑन कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग यू, क्योंकि इस तरीके का जो लो बिलीफ एनवायरनमेंट होता है ना, वो इट रेनफोर्सेस योर फेलियर। वो आपके फेलियर को और ज़्यादा मतलब उसकी जो बिलीफ है आपकी फेलियर आइडेंटिटी को और स्ट्रांग बनाता है। So stay with growth-minded people, read stories of successful person just to get motivated, and you will surely overcome your failure and you will surely overcome doubting yourself। और आपको strong रहोगे, confident रहोगे, strength मिलेगी to move ahead। सो मैम नाउ आई वांट टू आस्क यू कि जो हम बात करते हैं हीलिंग की एंड माइंडसेट की, सो आर दे इंटरकनेक्टेड? Yes, yes, they are very much interconnected with each other। क्योंकि और एंड दिस कनेक्शन इट इज रेफर टू एज बॉडी माइंड कनेक्शन, because our beliefs and our thoughts, they influence our physical health and ability to recover। और जो हमारा माइंडसेट है वो फिजिकली हमें कैसे हील करता है? इट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम, और हमारी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का, उसको ये कम करता है। और ये हमारी जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसको रिपेयर करता है। और यही अगर हमारा नेगेटिव माइंडसेट होगा तो हमारी बॉडी की हीलिंग स्लो डाउन कर देगा। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन इमोशनल हीलिंग, लाइक हमें किसी ट्रॉमा से ये जल्दी बाहर निकालता है अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है। और it also helps in reducing your stress, anxiety level, and manages your emotional pain also। And it helps you to take new challenges। आप new challenges को face करने में comfortable feel करते हो, and you take your challenges as opportunities for growth and resilience, and fostering your emotional well-being। और इसके बाद आपका ये इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग करता है कि यू आर एबल टू फाइट विथ योर बॉडी इन्फेक्शन ईजिली, और आप जल्दी रिकवर करते हो। और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपकी हीलिंग भी लेट होती है और बॉडी भी वीक होती है। एंड इट ऑल्सो मैनेजेस योर पेन, जो आपकी बॉडी में पेन होते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव माइंड, आप हमेशा सोचो अगर आपने कहीं मूवी देखने जाना है या आपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है, आपको थोड़ा बहुत बॉडी पेन हो रहा होगा, आप चले जाओगे। क्यों? उस समय आप बहुत खुश हो, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप कहोगे नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता, और वो थोड़ी देर बाद आप भूल भी जाओगे, ठीक हो जाओगे। अब अगर इसी की जगह आपको कोई बहुत ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम करना है, तो बॉडी पेन बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा नहीं अभी तो मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ा इसको टालती हूँ। तो इट ऑल इन योर माइंड। हीलिंग बहुत जल्दी होती है जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है। सो हीलिंग माइंडसेट इट इज अ पावरफुल टूल फॉर promoting your physical and emotional well-being, and also for accelerating your healing process। एग्जैक्टली मैम। नाउ अब ना हम लोग ऐसे बहुत करते हैं कि अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, एंड नेगेटिव थॉट्स हमें हमेशा आते ही हैं। सो हाउ वन कैन मैनेज सेल्फ डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स ऑन अ डेली बेसिस? See, managing self-doubt and negative thoughts is like you are tending your mental garden। आप अपने मेंटल गार्डन को इम्प्रूव कर रहे हो। उसमें सबसे पहले क्या करोगे? पुल आउट ऑल द वीड्स। ये वीड क्या है? हमारे सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव थॉट। देन यू प्लांट न्यू बिलीव्स,
एंड देन वाटर इट विद योर एक्शंस. जब हमारे न्यू पॉजिटिव बिलीफ्स आएंगे तो हमारे एक्शन भी पॉजिटिव होंगे. एंड इसके लिए what you have to do for managing your self-doubt. First of all, instead of saying that I have failed, just say no, the attempt did not work. देखो दोनों में कितना फर्क है. रीफ्रेम कर दो स्टोरी को. अपने आप को, अगर आपको सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट से बचना है, अपनी सबसे पहले स्टोरी को ही रीफ्रेम करो कि जहाँ एक इंसान कह रहा है आई हैव फेल्ड और दूसरा कह रहा है द अटेम्प्ट डिड नॉट वर्क, तो जहाँ हम कह रहे हैं अटेम्प्ट डिड नॉट वर्क, वो एक होप दिखा रहा है कि मैं दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ और मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ. हाँ. एंड दूसरा, चेंज योर नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव एफर्मेशन. अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो और अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे आप बहुत सक्सेसफुल हो एंड सक्सेस इज कमिंग टू यू फ्रॉम ऑल द साइड एंड यू आर सक्सेसफुल इन ऑल द एरिया ऑफ योर लाइफ. उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन reprogramming your subconscious mind. And this and with that too with positive expectation and build your confidence. और ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कैसे रिप्रोग्राम होता है, by following some techniques like meditation, visualization, box breathing, mindfulness exercises. All these things calm your mind and makes you tension free, stress free, and reduces your anxiety. So these techniques, they are very helpful in shifting your negative thoughts or negative thinking to a positive one. And the other thing is that कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को ऐसे मत सोचो कि मैं अपने आप को नहीं आगे ले जा सकता. जस्ट सीक अ सपोर्ट ऑफ पीपल हु बिलीव इन योरसेल्फ. स्टे विद दोस टाइप ऑफ पीपल हु बिलीव इन योर पोटेंशियल. क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनती है हमारे अपने बारे में, और दैट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग योर सेल्फ डाउट. और इसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीवायर होने में टाइम लगता है. इट्स नॉट वन डे प्रोसेस. ये नहीं है कि आज आप कहोगे मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर लेती हूँ. इट्स नॉट पॉसिबल. देयर इज अ प्रोसेस, और इन बिटवीन दैट प्रोसेस कीप ऑन एंजॉइंग दैट प्रोसेस. अपने कोई भी छोटे अचीवमेंट उसमें आ रहे हैं या कोई आपको सक्सेस मिल रही है, एंजॉय इट और फ्लो के साथ चलो. So, when you follow all these techniques and strategies, then you can easily remove these negative thoughts and self-doubt from your daily life. तो मैम लास्टली आई वांट नो कि हम लोग बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं या ऑडियंस है और हम में से भी कुछ ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने पॉजिटिव थॉट्स ले आए मन में तो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट ट्रांसफॉर्म में हो जाएगा वो, है ना. बट क्या क्लैरिटी और एक्शन गेन करना भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के नेसेसरी है? देखो, पॉजिटिव थिंकिंग और या पॉजिटिव थॉट्स होना सिर्फ वो तो ऐसे हो गया कि एक आपने कार है आपके पास, वो उसका टैंक आपने पेट्रोल से फुल कर दिया है या डीजल से, और आप अपना इंजन नहीं स्टार्ट कर रहे हो. So for real change, you need all the three things to work together. Your positive thinking is your ignition key. वो आपसे इट आस्क्स यू कि आप लाइक क्या चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो. एंड क्लैरिटी, इट शोज यू द राइट डायरेक्शन. अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी तो हम इधर उधर भटक जाएंगे, हम कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन ले सकते हैं और लॉस्ट हो सकते हैं. एंड एक्शन, इट इज एक्चुअली ड्राइविंग द कार, और ये हमें वहां लेके जाती है जहां हम जाना चाहते हैं. सो पॉजिटिव थिंकिंग, इट गिव्स यू अ स्टार्ट. क्लैरिटी, it shows you the right path, and your action, it takes you where you want to go. And without these three, either you get lost somewhere, or you run in circles, or you stay parked at one place. So to all my viewers, thank you very much for your time, and I take one-to-one personal sessions. If you have any query or any problem related to your career or relationship, you can contact me on the given number on the screen, and follow me on my Instagram page, Live Decorator Kiran Param, and FB page as well. Thank you.